یزید تارک الصلاۃ ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید جو ہے وہ شعر اسلامی کی دجیاں بکھیر رہا ہے، حلال محمد کو حرام کر رہا ہے، حرام محمد کو حلال کر رہا ہے۔ سب نے بیعت کرنی شروع کر دی۔ تیز رفتار سوار کو بھیج کر اس نے یہی پیغام مدینہ میں پہنچایا، نواسہ رسول دل بندے علی و بطول مولا واقع امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا کہ حسین دو صورتیں ہیں، یا میری بیعت کر لے یا سر دے دے۔ چونکہ مسجد نبوی میں یہ پیغام پہنچا، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روضہ اقدس پہ تھے، کہا کہ دربار میں جا کر رات کی تاریکی چھا گئی ہے، میں حسین ہوں، زمانہ سارا جانتا ہے، میں شاہ سوارے دوش پیغمبر ہوں، میں وہ ہوں کہ حالت نماز میں بھی آ جاؤں تو نبیوں کے سلطان کو سجدوں کو طولانی کرنا پڑتا ہے، میں رات کی تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں یہ جواب دوں گا۔ اگلے دن کی روشنی میں جب سارے جان رہے تھے، سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پہچانتے تھے اور سب جانتے تھے یہ حسین ابن علی ہیں، دن کی روشنی میں حسین ابن علی نے اعلان کیا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے رختے سفر مدینہ سے باندھا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں مکہ معظمہ، 4 مہینے حسین مکہ میں رہے، بندھا ہوا احرام 8 ذی الحج کو کھول دیا، امت مسلمہ حج کرتی رہی، نواسہ رسول نے جو ہے وہ بندھا ہوا احرام کھول کے کربلا کی طرف چل پڑے۔ 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے اور 7 محرم کو حسین علیہ السلام پہ اہل بیت اطہار پہ پانی بند کر دیا گیا، اور 10 محرم کو حق و باطل کا وہ مارکا ہوا کہ صبح قیامت تک کے لیے جس نے حد فاصل قائم کر کے یہ بتا دیا کہ دین کہاں پر ہے، اسلام کہاں پہ ہے، شریعت کہاں پہ ہے، حق کہاں پہ ہے، صداقت کہاں پہ ہے، تو حد فاصل قائم کر کے لکیر کھینچ کے حسین نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر بس 2 ہی مسلک پائے جاتے ہیں، 2 ہی فرقے پائے جاتے ہیں، 2 ہی سوچ رکھنے والے پائے جاتے ہیں، یا حسین کا پیروکار ہوگا یا یزید کا پیروکار ہوگا۔ حسین چونکہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ تو یہ جو عزاداری مولا مظلوم کربلا ہے، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں، کسی فرقے کے ساتھ نہیں، کسی رنگ نسل قوم قبیلے کے ساتھ نہیں، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ تو ساری دنیا کے اندر اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مطلع پہ نئے سال کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر بلا تفریق مذہب، مسلک، رنگ نسل قوم قبیلے خطے علاقے کے سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے حسین شہنشاہ کی عزاداری میں مشغول ہو جاتے ہیں، یاد حسین منانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مجلس کرتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی عزاداری کرتا ہے، کوئی سبیلے لگاتا ہے، کوئی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے یہ وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اور دونوں بڑے مکاتب فکر شیعہ اور سنی نے یہ وطن مل کے بنایا تھا۔ جس نے تصور پیش کیا تھا حکیم الامت شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، وہ سنی تھے لیکن اہل بیت کے محب اور پیروکار تھے اور حسین کے عاشق تھے۔ جس نے وطن بنا کے دیا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ تھا۔ راجہ محمود آباد کی پوری دولت لگی ہے، ان کا تعلق بھی مکتب تشیع کے ساتھ تھا۔ تو پاکستان کسی فرقے کی وجہ سے مارج وجود میں نہیں آیا، کسی کا نظریہ ٹھونسنے کے لیے نہیں آیا، یہ پاکستان ہم سب نے بنایا، یہ ہم سب کا ہے، سب کو یہاں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ تو وطن عزیز پاکستان کے اندر مختلف ادوار آتے رہے، موقع آتے رہے، کبھی جو ہے وہ جمہوریت رہی، کبھی جمہوریت کے نام پر شب خون مارا گیا، کبھی ڈکٹیٹر آ کر مسلط ہوتے رہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مار کر پاکستان کو اس کے نظریہ اساسی سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کے بعد
तहरीक नफाज फ़िक़ा जाफरिया के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी अल-नजफी अल्लाह मकामा जो है वो सामने आ गए। उस मार्शलाई दौर में जबकि पाकिस्तान को नजरिया असासी से हटाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को मखसूस फिरके की स्टेट बनाने की कोशिश की गई, आकाए मूसवी सरकार ने उस वक्त 8 महीने तक तहरीक चलाकर हुसैनी मुहाज पर और पूरे मुल्क से गिरफ्तारियां देकर, हमने 14,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां देकर 8 महीने की तहरीक के बाद हुसैनी मुहाज से ये 21 मई 1985 का मूसवी जनेजो मुआहदा है जो फकत और फकत हुकूमत का तहरीक नफाज फ़िक़ा जाफरिया पाकिस्तान के साथ है। और हुकूमत पाबंद है इस बात की कि वो सारे के सारे मसाइल इशू जितने भी हैं वो तनहा किसी एक मकतबा फिक्र के नहीं, वो सब के हल किए जाएं। आका मूसवी ने फरमाया था कि ना तो नाना के जुलूस मिलाद को, मिलादुन नबी के जुलूसों को, और ना नवासा हुसैन के जुलूसों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और शिया और सुन्नी के दरमियान कोई तफरका नहीं डाल सकता। लेकिन मालअसफ हम देख रहे हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान में बस कदगने, बस पाबंदियां ऐसी लगाई जाती हैं जो खिलाफे शरीयत हैं, खिलाफे आइन हैं, खिलाफे कानून हैं। हर मुल्क जो है वो हर शहरी को उसको आज़ादी का हक देता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ बहुत सारे अब मजालिस कर रहे हैं, मजालिस मातम और अज़ादारी का जुलूस बरामद हो रहे हैं, वहीं पर बहुत सारी वो जगह हैं कि जहाँ पर ये कदगने लगाई गई क़वाइदो ज़वाबित के उन्वान से, SOPs के उन्वान से, कदीमाना होने वाली मजलिसों को बंद कर दिया गया, होने वाले जुलूसों को रोका गया, रोका जा रहा है। और घरों के अंदर, चारदीवारी के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, बाउंड्री वाल के अंदर होने वाली, बाउंड्री वाल के अंदर होने वाली जो मजालिस हैं, जिक्र हुसैन इब्न अली, उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और बिलखसूस पंजाब के अंदर साबका हुकूमत ने, जिसके सरबराह इस वक्त जिंदान में हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कवानीन बनाए SOPs के नाम से, लेकिन मालअसफ इस हुकूमत ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको जारी और सारी रखा है। हम मीडिया की वसातत से आपको बताना चाहते हैं और ये पैगाम कन्वे करना चाहते हैं कि ऐसे जालमाना, गैर आइनी, गैर शरई, गैर इखलाकी, गैर कानूनी और आज़ादी पर कदगने लगाने वाले जितने SOPs हैं उनको फिल फौर ख़त्म किया जाए, अज़ादारों पर मुकदमात ख़त्म किए जाएं, और मजालिस पर होने वाली दानिस्ता या ना दानिस्ता पाबंदी, जुलूसों पर होने वाली दानिस्ता या ना दानिस्ता पाबंदी जो है उसको ख़त्म किया जाए। मजलिसें जो हैं अपने उन्हीं रूटीन के मुताबिक जारी और सारी रहें, और इसी तरह जो जुलूस उनके रूट मौजूद हैं उनको उसी रूट पर चलने दिया जाए। और इंतजामिया ये कहती है, हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, भाई रिकॉर्ड दुरुस्त करना जो है वो इंतजामिया का काम है। बानियान जो है वो इतने अरसे से मजालिस करा रहे हैं, लेकिन कदगनों का सामना कर रहे हैं, FIRs उन पर दी जा रही हैं और उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। इस वक्त भी हमने उस दिन प्रेस क्लब में भी कहा था कि बहुत सारी वो FIRs हैं कि जो कि हुकूमत ने जो है वो बेगुनाहों पर दी हैं, फॉर शेड्यूल में बेगुनाहों को शामिल किया गया है। तो ये कदगने, ये पाबंदियां ख़त्म की जाएं और अज़ादारों को हक दिया जाए जो हमारा बुनियादी हक है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अज़ादारी, आका मूसवी ने फरमाया था, हमारी शारगे हयात है, इस पर कोई पाबंदी ना पहले कबूल की है, ना अब करते हैं, ना आइंदा करेंगे। और सारे शिया सुन्नी भाई मिलकर इस पाबंदी को हटाते हुए हम हुसैन का जिक्र करेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर हस्बे साबिक हमने अपने पूरे नुमाइंदगान बैरून ममालिक के अंदर भी यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक ये सारे के सारे हमारे मरकज की सतह पे, सूबों की सतह पे, डिवीजन की सतह पे, अजला की सतह पर हमारे जो हैं वो आज़ादारी सेल मौजूद हैं। अज़ादारों को जब भी मसला हो ये रब्ता किया जाए इनसे, और हुकूमत मुहर्रम आज़ादारी सेल जो है कंट्रोल रूम्स कायम करे, जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीदा के दौर में तहरीक नफाज फ़िक़ा जाफरिया
पाकिस्तान के माँ पर शुरू हुए थे और पाकिस्तान तहरीक नफाज फिदा पाकिस्तान के कहने पर कंट्रोल रूम ज़दादारी सेल बने थे, उन सबको बहाल और फ़ाल किया जाए और 8 रबीउल अव्वल तक इनको जारी और सारी रखा जाए ताकि ज़दादारों के मिसाल को हल किया जा सके। हम इस वक्त वतन अजीज में ऐसे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जहाँ इंडिया जैसे हमारे अजली दुश्मन ने एक मरतबा फिर, जो अव्वल दिन से पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन है, मुखालिफ है, अव्वल दिन से उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, आमला आवर हुआ, लेकिन हमारी बहादुर शुजा अफवाज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने अजली दुश्मन को अपने पीठ पर खड़ी अवाम की ताकत से, अल्लाह और मासूमीन की ताकत और अवाम जो पीछे खड़े थे उनकी ताकत से उस दुश्मन के दांत खट्टे किए और छठी का दूध याद दिला दिया। अब भी एतबार नहीं करना चाहिए, हमारा दुश्मन मक्कार है, अय्यार है, वो कोई भी चाल चल सकता है। और इसी तरह मस्क वुस्ता के अंदर 2.25 साल हो गए हैं, लगातार जो है वहां पर बमबारी हो रही है, सारी के बादियां मिसमार कर दी गई हैं, कारपेट बमबारी हुई है और वहां पर फलस्तीन जिनके वजूद पर पैवस्त किया गया, जिनकी मुसलमानों की उस पर छुरा गोंपा गया, ये इसराइल नासूर की सूरत में उसने एक एक करके मुसलमान मुल्कों को बर्बाद करता चला जा रहा है। और अभी हालिया उसके बाद उसने फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान पे हमला किया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसराइल जो है, भारत जो है, ये तागूती ताकतें जो हैं, ये इस्तेमारी ताकतें जो हैं, ये यदीदी ताकतें जो हैं, इनको खत्म करने, इनको नाकू चने चबवाने के लिए और इनको काफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें मौला हुसैन की सीरत पे चलना होगा। और हुसैन का रास्ता हक का रास्ता है, सदाकत का रास्ता है, फतह का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, कामरानी का रास्ता है। और उसका जरिया यह है कि इन जुलूसों को, मजलिसों को, आजादारी को आम किया जाए और हम शिया और सुन्नी मिलकर इंशाअल्लाह सारी की सारी वो साजिशें नाकाम करेंगे और हुकूमत उन तंजीमों को, उन जमातों को जो बैरूनी इमदाद पर चलती हैं, बैरूनी फंडिंग से चलती हैं, उन पर पाबंदियां लगाए, कदमें लगाए। ये वो जमातें हैं जिन पर पाबंदी है, नाम के लिहाज से पाबंदी है, लेकिन अमली तौर पर सारे काम कर रहे हैं, तो इनका बाइकाट किया जाए। इसी तरह हुकूमत के अंदर हर सतह पर, हर फॉर्म पर कौम के नुमाइंदा लोग जो है वो शामिल किए जाएं। तो तहरीक नफाज फिका जाफरिया पाकिस्तान इंशाअल्लाह आका मूसवी के दिए हुए मिशन और विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती चली जाएगी। ना हम इस पाकिस्तान को फिरका वाराना स्टेट बनने देंगे और ना हम इंशाअल्लाह इसको शिया और सुन्नी भाइयों के दरमियान लड़ाई है ही कोई नहीं, मसला है ही कोई नहीं, ना हम इसको ऐसा करने देंगे। आप सारी शख्सियात का बहुत शुक्रिया। हद हुआ करती है हर रंग के अफसाने की, दर्द सहने की, अलम सहने की, गम खाने की, कलमा गोयो यही एक बात है तड़पाने की, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी ना मिला।